हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, you all know कि this chapter is a long one. Not just this chapter, all the chapters are, none of the chapters are short, but we have to study each and every chapter in details. तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस चैप्टर इनटू स्मॉल वीडियोस. ओके, सो लेट्स बिगिन. Now, let us imagine कि ये एक सेल है of a multicellular organism or any organism with higher level of body organization. Okay? Now, इस सेल में होता क्या है? What are the requirements? एक तो this cell needs supply, right? किन किन चीजों का सप्लाई चाहिए इसको? Nutrients, gases, hormones, inorganic and organic components, right? Clear है? On the other hand, all the cells of that multicellular organism is also giving out wastes. तो इससे क्या, what does the organism need to do? So what does that organism need to do to fulfill this purpose? Yeah, to fulfill this requirement, it needs to develop a mechanism which will do this back and forth transport. Clear है? और इसी back and forth transport को develop करने के लिए it needs or it has developed a body fluid and its circulation within the body. अब एक्सचेंज जब होगा तो एक मीडियम तो चाहिए लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? विद इन द बॉडी हवा में तो होगा नहीं, या थ्रू द सॉलिड पार्टिकल्स भी होगा नहीं. दैट इज वेयर द सर्कुलेटिंग मीडियम इज अ फ्लूइड एंड इट मूव्स थ्रू बॉडी, या यू कैन से द बॉडी कैविटी, राइट? नाउ when we begin to see at different organisms from the very basic level, from lower to higher organisms, हम देखते हैं कि हर level of organization में there is different body fluid and its circulation. तो what is blood? खून क्या है? क्या है खून? Blood is nothing but a fluid connective tissue, right? है तो ये connective tissue and it is fluid in nature. It does a major job of various kind of transportation within the body. Now, what is the composition of blood? Blood can be divided into two parts. एक है plasma. Now, plasma is the fluid matrix of the blood and it forms 55% of the blood. दूसरा है the various cellular components. Okay? अब cellular components को all together formed elements बोल के रेफर किया जाता है. Is that clear? So this is fluid. So this is the non-living part. These are the cellular parts. So this is the living part. And they form 45% of the blood. Clear? तो पहले हम प्लाज्मा को डिटेल्स में देखेंगे and then we will go to formed elements. Clear है students? Now plasma. Plasma by nature, how is it? It is straw colored and a viscous fluid. Right? 90 to 92% of it is water by composition. 6 to 8% is protein. और प्रोटीन को हम यहाँ तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. First, let's say fibrinogen. Now, what is fibrinogen? It is a clotting factor that is associated with clotting of blood. Now, students, clotting of blood को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में in the chapter. Clotting factors क्या है? Clotting factors is the name collectively given to all the elements that helps in coagulation of blood. Coagulation of blood के लिए कोई एक या दो एलिमेंट नहीं, बहुत सारे से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और वो एक कैस्केडिंग रिएक्शन होता है. तो सारे के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा क्लॉटिंग फैक्टर्स बोला जाता है. इनमें से बहुत सारे से एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीनेशियस बाय नेचर and fibrinogen is one of them. कुछ नॉन प्रोटीनेशियस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी
क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. ओके. Then albumin. Albumin are the group of proteins which help in maintaining, उनका function होता है to maintain the osmotic balance. Globulin. Globulin proteins क्या काम करते हैं? They help in immunity of the body. Globulins बोले तो the immunoglobulins, right? And they help in producing the antibodies of the body जब भी कोई attack होता है body में. So these are associated with immunity. फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में अगर हम आए तो वेरियस मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोरीन, द लिस्ट इज एंडलेस. इसमें से कैल्शियम जो है, हमने अभी क्लॉटिंग फैक्टर की बात की ना, तो कैल्शियम के बहुत सारे से रोल्स हैं हमारे बॉडी में, ऑफ विच इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लॉटिंग. इट इज वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, अ नॉन प्रोटीनेशियस क्लॉटिंग फैक्टर. याद रखना इस बात को. फिर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, ये हमेशा ट्रांजिटरी स्टेट में रहते हैं क्योंकि बॉडी को तो हमेशा इनकी ज़रूरत है, तो वो दे आर ऑलवेज मूविंग. वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स, मैंने P प्लस नॉन P लिखा है, मतलब फाइब्रिनोजन तो इज वन ऑफ द प्रोटीनेशियस क्लॉटिंग फैक्टर. उसके अलावा भी जो है प्रोटीनेशियस एंड नॉन प्रोटीनेशियस क्लॉटिंग फैक्टर दोनों ही प्लाज्मा में पाए जाते हैं. Various dissolved gases, hormones, enzymes and excretory products. Some of the excretory products are like urea, ammonia, creatine, creatinine, right? इनको तो ले जाके फिर किडनी में फिल्टर किया जाता है. So this is all that we have for plasma. तो ये प्लाज्मा से अगर हम फाइब्रिनोजन, इस पार्ट को और इस पार्ट को हटा दें, then what we have is serum. So serum is what? Plasma minus all clotting factors. Clear है? Clear students? Now plasma का function क्या है? The easiest and the most basic one is transportation. इसके अलावा इट हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट विद इन द बॉडी. फिर इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द pH ऑफ द बॉडी. क्लियर है? एंड इन मेनी थिंग्स एंड बिकॉज ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स इसमें फ्लो करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी. बट दिस इज नॉट द ओनली वन विच इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज अ कलेक्ट, और भी देर आर मेनी अदर प्लेयर्स. ओके, सो विद दिस प्लाज्मा हो गया, ऑल डन एंड डस्टेड. इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं. ओके, तो क्लासिफिकेशन में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली. फर्स्ट ब्लड सेल्स, दूसरा है ब्लड प्लेटलेट्स. फिर ब्लड सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स विच इज द RBC या द रेड ब्लड सेल, एंड ल्यूकोसाइट्स द WBC या white blood cells. Now erythrocytes are very high in number, 5 to 5.5 million per cubic millimeter of blood. Clear है? They are red in color और ल्यूकोसाइट्स क्या है? कलरलेस है, और इनका नंबर बहुत कम होता है when we compare it to the RBC. See here we were talking of millions, यहाँ सीधा thousands पे आ गए, right? पर क्लियर है? और एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में एक मेजर डिफरेंस है कि दिस इज इन्यूक्लिएटेड, मीन्स आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है. Now WBC is further divided into two categories, granulocytes and agranulocytes. तो ये डिवीजन क्यों है? दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि स्टेनिंग के बाद कौन से वाले सेल्स अपने साइटोप्लाज्म में एक ग्रैन्युलर अपीयरेंस देते हैं.
जो ग्रैन्युलर अपीयरेंस देते हैं दे आर पुट हियर अंडर ग्रैन्युलोसाइट्स, और जो ग्रैन्युलर अपीयरेंस नहीं देते दे आर पुट हियर अंडर ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ओके, नाउ ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या है? बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल. और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या है? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ओके, अब याद रहेगा क्या बहुत बार याद करने के बाद भी कि ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से? तो एक टिप देती हूँ. ग्रैन्युलोसाइट्स के लिए रिमेंबर द वर्ड BEN या बेन. बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल. क्लियर? ए ग्रैन्युलोसाइट्स को कैसे याद रखेंगे? मोनोसाइट का मो, लिम्फोसाइट का ली. सो जस्ट रिमेंबर द नेम मॉली. क्लियर है? अगर ये टिप आपको याद रखने में हेल्प कर रहा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसी बात पे एक लाइक इस वीडियो के लिए बनता है. ओके, फिर है ब्लड प्लेटलेट्स. अब ब्लड प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, एक्चुअली दे आर फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स. इन डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट लेट अस फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम एरिथ्रोसाइट्स या द रेड ब्लड सेल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ RBC. RBC का काउंट क्या होता है पूरे ब्लड में? इट इज 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. सेल इनका कैसा होता है? नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये इन्यूक्लिएटेड मीन्स विदाउट एनी न्यूक्लियस. ओके, और खाली इन्यूक्लिएटेड ही नहीं, इनमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. और उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है देयर कॉन्स्टिट्यूएंट इज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, एंड साइज इज 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. क्लियर है? अब हम वापस आते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं होते, या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होने के पीछे का कारण क्या है. नाउ RBC का मेन फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन, and that is why they contain the pigment hemoglobin. तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हटा के साइटोप्लाज्म में जितना आप ऑर्गेनेल्स हटा देंगे हीमोग्लोबिन उतना ज़्यादा हो सकेगा. सो इट इज़ प्राइमरीली टू क्रिएट स्पेस टू कंटेन मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन इन द साइटोप्लाज्म. ओके, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके. नाउ इन सेल्स का शेप कैसा होता है? दे आर बाइकॉन्केव इन आउटलाइन. बाइकॉन्केव इन आउटलाइन क्यों होता है? सी, अगर एक पूरा स्फेरिकल हो इस तरीके से और उसके बदले में अगर बाइकॉन्केव हो तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है. सो इट नीड्स मोर सरफेस एरिया ताकि मोर उसमें साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ये कैरी कर सके. क्लियर है? So they are basically oval in outline, more or less oval you can say, but biconcave on both the surfaces, and this biconcaveness is to increase the surface area. Clear है बच्चों? अब इनके साइटोप्लाज्म के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे आते हैं. फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 parts. हीमोग्लोबिन एक्चुअली है कि इट इज़ अ पिगमेंट. तो इसके 2 पार्ट्स है. वन इज द हीम जो कि एक पोरफायरिन रिंग और जिसके सेंटर में आयरन होता है. दूसरा है द ग्लोबिन पार्ट. ओके, एंड दिस इज द प्रोटीन पार्ट. तो इनका फंक्शन मेन क्या है? दे बाइंड विथ ऑक्सीजन एज वेल एज दे ऑल्सो बाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दे कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स. ओके, सो व्हेन दे आर कैरिंग ऑक्सीजन दे hemoglobin is called, और या hemoglobin becomes oxyhemoglobin. मैं लिख दूँ यहाँ पे. And before I write, I think if you can take a screenshot of this so that that happens to be a handy note for you. या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने हैंडराइटिंग से अच्छे से लिख के कहीं चिपका के रखिए.
ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड जब कैरी करते हैं, इट बिकम्स कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? इसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम विद इन द आरबीसी इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। नो कार्बोनिक एनहाइड्रेस व्हाट डज इट डू? आपने प्रीवियस वाले चैप्टर में ही पढ़ा है। सी कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज बीइंग कैरिड तो वो it is converted to carbonic acid and carbonic acid again disintegrates to form bicarbonate ions, right? So see कार्बन डाइऑक्साइड जब कैरी किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन को फिर से डिसोसिएट करके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया जाता है और उसी रिएक्शन को ये वाला एंजाइम इट helps in that reaction, right? So these are the two very important components of hemoglobin, sorry, RBC. Now anemia term तो आप सब ने सुना होगा, but just to clear your confusion कि अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि decrease in less number of RBC is called anemia, शायद जल्दी में if you don't pay attention you may take it as right, but no, decrease in hemoglobin is referred to as anemia and decrease in RBC is referred as erythrocytopenia. ये दो टर्म्स याद रखना कि एनीमिया एक्चुअली इज अ डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन एंड नॉट आरबीसी, जस्ट इन केस अगर कंफ्यूजन हो। और हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी क्या होता है? 12 to 18 grams per 100 milliliter of blood in adult human. Okay, it is also very important you write this in adult healthy human. Clear? All clear about RBC? So अब हम इस कलरफुल पार्ट से कलरलेस पार्ट पे जाते हैं, यानी द ल्यूकोसाइट्स। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स WBC में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले द ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, तो ग्रैन्युलोसाइट्स में फर्स्ट अगेन रिमेंबर BEN बेन, हम बेन को देखेंगे। तो बेन के बी को देखते हैं बेसोफिल। इनका अकरेंस बहुत ही कम होता है एंड दे आर द लीस्ट ऑफ द WBC प्रेजेंट इन ब्लड, 0.5 to 1%. Okay, they have a 3-lobed nucleus and they secrete heparin which is an anticoagulant so that blood में without any reason blood coagulation ना हो जाए। Okay, body में, I'm sorry, not blood, body में unnecessary blood clotting ना शुरू हो जाए, इसीलिए this secrete this anticoagulant. They secrete serotonin and very important thing is histamine, and because of this they give these inflammatory reactions. Okay, फिर आते हैं eosinophil में। They form 2 to 3% of the total WBC. इनका न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड होता है and they have antihistaminic properties. They help in fight infection of the body और they are associated with allergic reactions of the body. इसीलिए अगर कभी भी किसी को कोई एलर्जी हो, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप रनी नोज या सर्दी खांसी किसी को काफ़ी दिनों से हुआ है एंड इफ़ यू डू अ ब्लड टेस्ट या उसको हे फीवर हुआ है या ऐसा कुछ, यू विल सी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ईओसिनोफिल। ओके, फिर आते हैं न्यूट्रोफिल में। Neutrophil is the most abundant of the WBC. They have a multi-lobed nucleus and they are phagocytic in nature. Now, WBC सारे के सारे होते हैं with nucleus और इनके nucleus के shapes अलग अलग होते हैं। Now you may please refer to the diagram that is given in your book और यहाँ पे इनके nucleus के shapes को अगर आप देखें, then you will understand that they are of various shapes. Clear है? So this was all about granulocytes of WBC. अब हम देखते हैं the A granulocytes. So अब हम देखते हैं A granulocytes यानी the मोली का monocytes. They are the largest of the WBCs. उनका जो न्यूक्लियस होता है that is horseshoe shape
एंड दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, यानी ये कोई पैथोजन अगर इनको मिले तो ये उसको खा जाएंगे, राइट। इससे पहले फैगोसाइटिक हमें कौन से वाले WBC में देखा था? दैट वाज न्यूट्रोफिल्स। फिर आते हैं लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट्स फॉर्म 20 to 25% ऑफ द WBC, और लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, वन इज बीटा लिम्फोसाइट, अनदर इज टी लिम्फोसाइट। इन लिम्फोसाइट्स के बारे में यू विल रीड मोर इन क्लास 12, बट अभी के लिए जान लीजिए कि दे बोथ आर मेड इन द और सिंथेसाइज्ड इन द बोन मैरो। बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, it matures in the bone marrow. T lymphocyte, it matures in the thymus of our body. B lymphocyte makes the antibodies. T lymphocyte antibodies तो नहीं बनाते, but they help the B lymphocyte in making so. Okay, and they are associated with the immunity. So with this, students, the cellular जो blood cells थे, RBC as well as WBC दोनों खत्म होते हैं। ओके, नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। द टू फैगोसाइटिक WBC, एक है मोनोसाइट, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है, याद रहेगा। फिर अगर हम देखें कि फ्रॉम लोअर टू हायर इनका सीक्वेंस ऑफ अकरेंस क्या होता है, सबसे पहले आएगा बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम, फिर इओसिनोफिल, फिर मोनोसाइट्स, फिर लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ऑल क्लियर अबाउट RBC एंड WBC? नाउ लेट्स सी ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ द लास्ट पार्ट इज प्लेटलेट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। नाउ देयर काउंट इन द ब्लड इज 1.5 lakh to 3.5 lakh per cubic millimeter of blood. And what are they? They are not true cells. Rather, they are fragment of cell formed from megakaryocytes in bone marrow. तो bone marrow में ये सेल होते हैं which have large nucleus. Okay? इन्हीं के टुकड़े होते हैं। So इसीलिए ये एक प्लेटलेट हो गया, ये एक, and that is why they are without any nucleus. तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन से दो कंपोनेंट है विच आर विदाउट न्यूक्लियस? एक तो हो गया द RBC, दूसरा यू कैन से प्लेटलेट्स। ओके, एंड दे आर एसोसिएटेड विथ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका लाइफ स्पैन इज 1 week, एंड आफ्टर दैट दे आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर एंड स्प्लिन ऑफ द बॉडी। एक बात मैं कहना भूल गए, RBC का लाइफ स्पैन इज 120 days, and they are destroyed in the spleen of the body, and that is why spleen in human body is also referred to as graveyard of RBC. Okay, now with this we are done with the blood, its composition, plasma and formed elements. तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे about, or we will know about grouping of blood, disorder of incompatibility of grouping of blood, and blood clotting mechanism. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, एंड अगर आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Please keep the channel subscribed so that you can get updates on the videos as and when I upload them. Okay? Bye.